Welcome to this very important interactive session on data protection law that India is going to implement approximately in 2027. The Act has been enacted in 2023, Digital Personal Data Protection Act 2023. મિત્રો, ભારતમાં ઘણા બધા કાયદાઓ બની રહ્યા છે અને નવા યુગ પ્રમાણે નવા કાયદાઓ બનાવવા આપણી સિટીઝન્સ એટલે કે નાગરિકોની સુરક્ષા માટે જરૂરી પણ છે અને એ કાયદાની કોમ્પ્લેક્સિટીઝ પણ ઘણી બધી હોય છે અને આપણે ટેકનોલોજીનો લાભ લેવો હોય તો એ કાયદાની વાટી ઘૂંટીઓ આપણને સમજવી જરૂરી છે. એક નાગરિક તરીકે એના કરતા વધારે ગમે તે ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ તરીકે બધાના મોબાઈલ્સને સાયલેન્ટ કરવા માટે વિનંતી છે. ખાસ કરીને ડીપીટીપી એક્ટ નાગરિકોને અધિકારો આપે છે અને સંસ્થાઓ કંપનીઓને લાયબિલિટી એટલે કે જવાબદારી આપે છે. તેના વિશે છણાવટ કરવા માટે આપણી પાસે બહુ જ અનુભવી એવા બે તજજ્ઞ વક્તાઓ હાજર છે. એટલે આ કાર્યક્રમની વિધિવત શરૂઆત કરવા માટે આપણી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના માનદ ખજાનચી સીએ મિતિશભાઈ મોદી સાહેબને સ્વાગત પ્રવચન માટે વિનંતી કરું છું. Good afternoon to everybody. हमारे साथ है डायस पर हमारा ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर अनिल सरावगी, ग्रुप चेयरमैन दीपक भाई सेठवाला, आज का स्पीकर सुरेंद्र अग्रवाल एडवोकेट and Krishna Agarwal. We are from Mumbai and also ladies and gentlemen. आज एक प्रोग्राम છે ને જે ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ પર આપણે જે સેશન રાખ્યું છે એનો હમણાં જ અનિલભાઈએ કહ્યું કે વોટ ઇઝ ધી પર્પઝ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રામ. કે પર્પઝ તમને થોડો ઘણો ખ્યાલ આવશે અને એ પ્રોગ્રામ શરૂ થાય તે પહેલાં અમારા પ્રમુખ નિખિલભાઈ મદ્રાસી વતી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આપણે એવા પ્રોગ્રામ લાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે જેથી ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રીને અને આપણા દરેક સભ્યોને આપણે દર વખતે કહીએ છીએ કે આપણા સભ્યો 14,000 કરતાં પણ વધુ છે અને 150 ટ્રેડ એસોસિએશન અમારા મેમ્બર છે અને જ્યારે આપણી સંસ્થા 1940થી સ્થપાયેલી છે. તમને ગુજરાતી ચાલે છે ને તો લિટલ બિટ. तो हमारी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो 1940 में एस्टैब्लिश हुई. दिस इज दी 86th ईयर and our president Mr. Nikhil Madrasi is the 79th president of this chamber of commerce. So that means our chamber of commerce has been established before the independence and we are trying to serve the trade and industry people, our community, by organizing these type of programs so that awareness may greater and greater. They can understand the law, they can understand the how to implement the law. That is very important. And what is the compliances, what are the consequences, and what it may cost up to thousands of rupees. So it is very important. तो हम ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम कंटिन्यूस बेसिस पे करते आए हैं और मैं मानता हूँ कि ये टर्म जो हमारे जून महीना से स्टार्ट हुई तो अभी वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 375 programs we have already completed. This is the achievement of our President Nikhil Madrasi. So it is our continuous efforts. आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ही क्यों ऑडियंस है, लेकिन these all are diamonds. So diamonds हमेशा थोड़े कम होते हैं लेकिन they are very much precious for us. Always they are eager to learn something more, something new. आप सब जानते हैं कि डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट जब नरेंद्र मोदी साहब आए फर्स्ट टाइम 2014 में, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, ये जो कंसेप्ट है उसमें डिजिटल इंडिया पहले उन्होंने उन पे भार दिया. क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है अभी डिजिटल चल रहा है. अभी हमारा इंडिया में जो प्लेटफॉर्म है तो वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है वो डिजिटल ही है. नाउ एआई का वर्ल्ड आ रहा है तो अभी एआई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यूचर आएगा. लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा क्या है. ये डिजिटल इंडिया को आगे ले जाना है तो डेटा इज द मेन सोर्स और डेटा इम्पोर्टेंट है.
वन मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बताया कि जो हम एआई को प्राधान्य देने जा रहे हैं, पूरी नई पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो डेटा मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, डेटा जो हम प्रोवाइड करेंगे इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, तो हम सब समझ सकते हैं कि डेटा का क्या इम्पोर्टेंस और क्या रेलेवेंस है। इसीलिए कुछ साल पहले ये एक्ट आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अभी हम सब लोग मोर देन 850 मिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट। तो पूरा जो इंडस्ट्री है, मान लो पूरा वर्ल्ड हो डेटा ड्रिवन है और डिजिटल है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अभी डे बाय डे ये डेटा का यूज होना, अभी देयर इज नो ऑप्शन, वन कैन नॉट रन देयर ट्रेडिंग इंडस्ट्री विदाउट डेटा। तो कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, उसका कॉम्प्लायंसेस कैसे करना है, तो नहीं कॉम्प्लायंसेस से कोई तकेदारी नहीं रखेंगे तो क्या उसकी कॉस्ट आएगी, क्या नुकसान होगा और लॉ क्या कहता है, तो वो समझने के लिए बहुत जरूरी है। और किशन जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे सूरत साउथ बिलासपुर हमारे जो मेनली मेंबर है वो एमएसएमई सेक्टर से हैं। तो एमएसएमई में ये अवेयरनेस लाना, उनको ट्रेन करना, ये हमारे चैम्बर का काम है। और यही उद्देश्य ध्यान में रखते हुए हमने आज हमारा ये सेशन रखा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, on behalf of our team, group chairman and all the other office bearers, we welcome you with a great heart, and we hope that at the end of this session we will learn more about the data protection. Thank you very much. थैंक यू मित्रों। एक बहुत ही अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे खजांची आज की तारीख में, उन्होंने बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छी तरह से इस पूरे कार्यक्रम का प्रारूप बनाया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के चेयरमैन और हमारे मानक खजांची सीए नीतीश मोदी से निवेदन करूंगा कि आज के जो प्रमुख वक्ता हैं उनका फूलों से और चैम्बर की एक स्मृति भेंट से उनका स्वागत करें। नहीं, फ्रेंड को भी दे सकते हैं। ये तो डिस्काउंट के दिस जो प्री इंडिपेंडेंस एरा चैम्बर के अस्तित्व की बात कर रहे थे, उसकी एक पूरी जर्नी के अंदर है 1940 से 2000। हमने बधाने जણાવી દો કે આપણે એટલા નસીબદાર છીએ કે એડવોકેટ એક સોલિસિટર ફાઇલ આવે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં આટલા વિદ્વાન વક્તા આવે એનો લાભ આપણે બધાએ લેવો જ જોઈએ। સ્પેશિયલી બોમ્બેથી લોકો આવ્યા છે, મેં એમનો હમણાં જ કાર્ડ જોયો, એના પરથી કહું છું કે એમનું આ વિષય પર નોલેજ ખૂબ સ્પેશિયલ હશે, હું ગેરંટી આપું, કારણ કે પોતે સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં પ્રેક્ટિસ કરે છે। हमारे चेयरमैन साहब ने सॉलिसिटर मैडम की जो बात कही, सॉलिसिटर कंपनी में से जो आ रहे हैं, so today she is going to talk about data protection act for sure, but as a solicitor firm partner or associate, that is not the only act she might be dealing in. So while she interacts with us, she would certainly be overspilling many of her experiences in other domains also. So when one speaks out his or her whole personality. So from that perspective, if we listen, that would be a great experience for us. Moving forward, I request our group chairman and past honorary secretary of Chamber of Commerce, Sri Deepak Bhai Shetwala, to tell us more about the program also. Deepak Bhai. Good evening, friends. આજના આ પ્રોગ્રામના ચેરમેન શ્રી મિતિશભાઈ મોદી, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઓનરરી ટ્રેઝરર, આજના વક્તાઓ શ્રી કિશનભાઈ અગ્રવાલ, રીતિકા દાસ and Vishal Agrawal, Group Chairman Sri Anil Sarawgi,
and friends. આજના આ પ્રોગ્રામમાં ડેટા પર્સનલ પ્રોટેક્શન એક્ટ 2023 માં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધા ડિજિટલ યુગમાં જીવીએ છીએ અને ડિજિટલ મીન્સ કે ડેટા છે તો ડિજિટલ છે, અદરવાઇઝ ડિજિટલ પોસિબલ નથી. અને આ ડેટા એ આજે એવું કહેવાય કે પ્રીશિયસ મેટલ કે ઇવન ઓઇલ કરતા પણ વધારે કિંમતી વસ્તુ છે. જેની પાસે ડેટા છે એ રાજા છે. ગૂગલ લઈ લો, ફેસબુક લઈ લો, એ લોકો આજે કિંગ છે. કારણ કે ગૂગલ પાસે તમારી એક વસ્તુના, તમે એન્ડ્રોઈડ વાપરો છો તો એન્ડ્રોઈડ ગૂગલની પ્રોડક્ટ છે અને તમારી બધી જ હરકતો તેને ખબર છે. તમે ઘણી બધી એપ વાપરો છો અને દરેક એપની અંદર પણ તમે તમારો ડેટા નાખો છો, પછી તમને એપ વાપરવાની છે. તો તમે આપણે એક માયામાં ફસાયેલા છીએ. આ માયામાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ જ નથી. અને આ પરિસ્થિતિની અંદર એવું છે કે આપણે કેવી રીતે આપણી જાતને સાચવી શકીએ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હમણાં એક એક્ઝામ્પલ આપું. 6 મહિના પહેલાની વાત છે. મારી ડોટર ઇંગ્લેન્ડ રહી છે, યુકેમાં લંડનમાં રહી છે, અને મારે એને કોઈ પાર્સલ મોકલવાનું હતું. અને મેં पार्सल मोकलो અને 4 દિવસ થયા હતા અને विदिन 4 डेज मेरे पे कॉल आया कि आपका एक पार्सल निकला है और वो कस्टम में अटक गया है. तो मैं तो एकदम शॉक हो गया कि क्या, मैंने तो सिर्फ खाना भेजा है और कुछ घर की सामग्री भेजी है, कस्टम में कैसे उसको उनका दिया. तो टेंशन में मैंने बोला भाई क्या है, कैसा है, मेरे को डिटेल्स दो, मुझे क्या करना है. वो रियली पैनिक. फिर आई टुक ब्रेथ. मुझे लगा थोड़ा शांति से सोचने दो, और मैंने शांति सोचा. फिर मुझे लगा लेट मी टॉक टू माय द कुरियर एजेंसी. मैंने बोला भाई ऐसा मेरे पे कॉल आ गया, अपना पार्सल कहीं पे कस्टम में अटक गया. तो बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, अपना पार्सल 5 दिन में आपको यूके में मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो. पॉइंट इज दैट कि ये मेरा डेटा मैंने यहाँ को कुरियर वाले को दिया, कुरियर वाले ने किसी एजेंसी को दिया होगा यूके भेजने के लिए, तो वहां से कहीं से भी ये डेटा लीक हो गया. और वो डेटा इमीडिएटली, समझिए 4 दिन में डेटा लीक हो गया और मेरे पे कॉल आ गया, भेज दिया, कुछ भी होगा. तो ऐसे इस तरह से डेटा का बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है. डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा के बिना आज के जमाना, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, नीतीश सर ने, कि डेटा के बिना आज का बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है. बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कोर्स चल रहे हैं डेटा एनालिटिक्स पे, और कोई भी कंपनी को कहीं पे बिजनेस चालू करना है तो डेटा एनालिसिस के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है. ये लोग भी अगर सूरत में आए होंगे तो इन्होंने भी देखा होगा कि चैप्टर क्या करती है, कैसे करती है, कितने प्रोग्राम्स करती है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, वो समझ के वो लोग भी आए होंगे. तो डेटा के बिना काम नहीं होता. लेकिन हर एक धंधा में पैसा कमाने का 2 रास्ता होता है, सही रास्ता और गलत रास्ता. और गलत रास्ता 2 लोग करते हैं, जिनको हम डेटा देते हैं, और जो लोग डेटा का मिसयूज करते हैं, हमसे फ्रॉड करते हैं. तो ये सब चीजें बहुत डेंजरस है. और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गवर्नमेंट इस पे सजाग हो गई. पूरे वर्ल्ड में 130 कंट्रीज ने ये लॉ बनाया है कि भाई हम डेटा हमारा दे रहे हैं तो इट्स अ प्राइवेट डेटा, वन शुड नॉट मिसयूज इट. ये बात हमें भी समझनी चाहिए कि मैं आपको डेटा दे रहा हूं तो मैं आपको किसी को देने के लिए नहीं दे रहा हूं. अगर आप LIC वाले हैं, बैंक वाले हैं, स्टॉक होल्डिंग वाले, स्टॉक कॉर्पोरेशन वाले हैं, कि कोई भी है, आपको डेटा शेयर नहीं करना है. और अगर आप शेयर करते हैं तो इट्स अ बिग क्राइम. तो और ये क्राइम में हमको क्या गवर्नमेंट के नए लॉ से क्या सहूलियत मिलने वाली है, इस बाबत की जानकारी आज हमारे दोनों तज्ञ देने वाले हैं. मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप लेमन की लैंग्वेज में समझाइए. आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, सॉलिसिटर हैं, तो आपकी लैंग्वेज तो ऐसी होगी कि ऊपर से पूरी चली जाएगी. लेकिन हमारे जो MSRP वाले लोग आए हैं, उनको अब अच्छी तरह से कैसे इस लॉ का प्रोटेक्शन मिल सकता है वो आप समझाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. और आपका आज का ये प्रोग्राम बहुत फ्रूटफुल होगा. ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम भी हम करेंगे, इंडस्ट्री के साथ में मिलकर करेंगे, और इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है. जैसे हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के डेटा में आए तो उन्होंने बताया बैंक वाले भी इसको आपके साथ में मिलकर कार्यक्रम करने वाले हैं. So there are plenty of opportunities and you should be prepared for it always.
इससे आपका धंधा भी चलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पेन कमिंग टू सूरत एंड शेयरिंग गोइंग टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सो मच। मित्रों, दीपक भाई ने जिस तरह से बताया कि हम पैनिक हो चुके थे, तो इस कार्यक्रम का हेतु यही है कि पैनिक से पीस की तरफ किस तरह से जाया जाए। तो हम भी हमेशा, मैंने भी मेरा एक किस्सा जब बैठे थे तो बताया था, वी विल नॉट शेयर दैट, लेकिन इस परिस्थिति में हम डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें और हम पीसफुली किस तरह से बिजनेस कर सकें, उसके लिए हमें मार्गदर्शन देने के लिए दो विभूतियां मौजूद हैं। उसमें से सबसे पहले हमें बात करेंगे कृष्ण जी अग्रवाल, हु इज अ सॉलिसिटर एंड कॉर्पोरेट लॉयर एट SRA लीगल फर्म ऑफ बॉम्बे। आई रिक्वेस्ट किशन जी टू शेयर हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। किशन जी। Good evening, everyone. Thank you for joining us today for this workshop. I'm Krishan Agarwal. And I am Ritika Das. Together, we're going to walk you through India's key privacy law, the Digital Personal Data Protection Act, or the DPDP Act. Let's start with a quick thought experiment. Imagine leaving your unlocked phone to a stranger and walking away. सर हिंदी में ले सकते हो सर, इफ इट इज कंफर्टेबल। मैं कोशिश कर। सोच के देखिए, आप अपना फोन, अनलॉक्ड फोन किसी अनजान व्यक्ति को छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद वहां से जरा हट जाते हैं। अब आप उसके अंदर देखिए, आपके फोन के अंदर आपका सारा पर्सनल डेटा है। कैसे? जैसे आपका फोटोज, आपका बैंकिंग आईडी, आपका मोबाइल फोन रिलेटेड जो भी डेटा होता है, वो सारा डेटा आपके फोन में है आजकल। अब ये जो डेटा है ना, यही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल डेटा है आज के टाइम पे, राइट? ये जो आपसे रिलेटेड डेटा है, ये आज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल डेटा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज कंपनियां इससे करोड़ों कमा रही हैं। इसको बेचकर, इसको मेंटेन कर, इसको कलेक्ट कर, इसको किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस कर, इससे कंपनियां आज करोड़ों कमा रही हैं। जैसे दीपक सर ने आज कहा कि कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये डेटा को अलग अलग तरीके से मिसयूज किया जाता है। जैसे किसी स्कैमस्टर को दे दिया। आपने आज सुना होगा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट करके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। उसमें क्या होता है, कोई स्कैमस्टर आपको कॉल करेगा और आपको कॉल करके कहेगा कि जी मेरे आपके अगेंस्ट FIR फाइल हुई है। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि इस स्कैमस्टर को आपका डेटा मिला कैसे, आपकी इंफॉर्मेशन मिली कैसे। वेल, ये एक्चुअली में कहां से जाती है? ये वो ट्रैवल एजेंट, वो सर्विस प्रोवाइडर, वो एक इंसान जो इस चेन में इन्वॉल्व है, वहां से ये डेटा स्कैमस्टर्स के पास जाता है। ठीक है, ये जो एक्ट है, ये इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, ताकि आपका डेटा आपके कंट्रोल में रहे, आपके पास रहे और आपका डेटा किसी भी अनजान व्यक्ति तक ना पहुंचे अगर आप नहीं चाहते तो इसी चीज के लिए ये एक्ट बना है। अब हम इस एक्ट के बारे में थोड़ा डीप में जाने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, हिस्ट्री जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा उस दौरान जहां पे इंडिया में आईटी और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम हुआ था। दैट इज योर 1990। In 1990, government had introduced a lot of reforms that led to a lot of digital upgradation in the entire Indian ecosystem, because of which they saw that a lot of information was flowing in the entire ecosystem. Because of that, Indian government introduced Information Technology 2000 Act, which was aimed at protecting the information flowing within the ecosystem. However, that wasn't enough. उस एक्ट के अंदर इतना कुछ नहीं लिखा था, या उस एक्ट के वजह से बहुत सारा जो हमारा डेटा है वो फिर भी कई सारे लोगों के पास जाता था। तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने फिर 2011 में एक आईटी रूल्स निकाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, जिन्होंने सबसे पहली बार सेंसिटिव पर्सनल डेटा को कैटेगराइज किया। अब सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा आपका बैंकिंग इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, ये सब कुछ जो अगर किसी और के हाथ में चला जाए तो बहुत ज्यादा आपको डैमेज हो सकता है। तो इन सब चीजों को कहते हैं सेंसिटिव पर्सनल डेटा। इसका सबसे पहले आईटी रूल्स 2011 में इंट्रोड्यूस करा गया, बट फिर भी इस एक्ट के और इस रूल के होने के बावजूद डेटा फिर भी कई जगहों पे ट्रांसफर होता गया, कई लोगों को फ्रॉस्टर्स को डेटा का एक्सेस मिलता रहा और कई सारे यूजर्स, हम जैसे आम आदमी, हमेशा प्रॉब्लम में आते रहे।
इसी चीज को रोकने के लिए 11 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हम जैसे आम आदमी हैं, हमारा इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड किया जाए, हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ही ये था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स इट टुक अबाउट 2 years for the rules to come out. Now just recently, that is on 13th November 2025, the government of India, they introduced DPDP rules or digital data protection rules, which aims to provide you a timeline, that is all the organizations here, हम सभी organizations जो यहाँ बैठे हैं उन सबको इन्होंने कुछ 18 महीने का टाइम दिया, that is till 13th May 2027। अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये टाइम क्या दिया गया है कि आप सबको जो भी इस एक्ट में लिखा है, जैसे कंसेंट लेना, जैसे यूजर्स के राइट, फलाना फलाना, हम उन सब चीज के बारे में इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। फिलहाल क्या बात कहते हैं लॉ कि आपको 13 मई 2027 तक सारी की सारी ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करना है। अगर आप ये सारी ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, और ये पेनल्टीज का अमाउंट अगर आप सोचेंगे तो बहुत ज्यादा है। ये पेनल्टीज का अमाउंट है 250 करोड़ पर इंस्टेंस, मतलब अप टू 250 करोड़ एक इंसिडेंट के लिए, which is probably a lot or a very big number that we need to think about. इसी चीज के लिए हम यहाँ पे आज बैठे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि ये जो अब आपके पास 10 महीने रह गए हैं, क्या करना चाहिए इस 10 महीने में और किस तरह हम इसको आगे लेकर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हमें ये जानना चाहिए ऐप के बारे में कि ये इस कमरे में बैठे हुए सभी लोगों पे किस तरह अप्लाई करता है, किस तरह ये हम लोगों पे अप्लाई करेगा। सबसे पहले हमें इसके अंदर ये जानना है कि अप्लाई तो करेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने एम्प्लॉइज का डेटा लेता हूं, मैं तो B2C कस्टमर्स को कुछ नहीं देता, मेरे कोई कस्टमर नहीं है, तो इसका मतलब मेरे ऊपर ये लागू नहीं करेगा क्या? नहीं, आंसर इसका भी एक सिंपल है। आप अगर कोई भी तरीके का पर्सनल डेटा मतलब नाम, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप अपने पास कलेक्ट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, या फिर अपने कस्टमर्स को कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे हो, कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो भी ये एक्ट आप पे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसका ये एक्ट सिर्फ इंडियन कंपनीज पे ही नहीं अप्लाई करेगा, ये एक्ट उन सभी कंपनीज पे अप्लाई करेगा जो इनफैक्ट फॉरेन में भी रजिस्टर्ड है। अगर कोई H&M की कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और H&M की कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होके इंडियन कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रही है, तो ये H&M पे भी लागू है, ये Zara पे भी लागू है। वो सभी कंपनियां जो बाहर देश में बैठी हैं लेकिन इंडियन कस्टमर्स को प्रोडक्ट अपने या फिर अपनी गुड्स को सेल करती हैं, उन सभी पे लागू। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ की स्टेक होल्डर्स हैं, वो कौन है। सबसे पहले समझते हैं, मैंने इतनी देर से पर्सनल डेटा एक वर्ड यूज किया था, इसका क्या मतलब। पर्सनल डेटा अगेन मींस any information, any data that can use to identify you. जैसे फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सभी कुछ मैं आज यूज करके आपको एक भीड़ में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इसकी वजह से इस सभी डेटा को पर्सनल डेटा कहा जाता है। ठीक है, जो अगला हमें जो समझना है वो है डेटा प्रिंसिपल। लॉ के अंदर एक डेफिनेशन है और या फिर एक टर्म यूज किया गया है, डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल आप वो सभी हैं जिनका डेटा इस्तेमाल होता है, जिनका डेटा कस्टमर का यूज होता है। और मतलब आप सब सीधे से समझिए कि जैसे आपका कस्टमर, आपका एम्प्लॉय, आप खुद, वो सब के सब डेटा प्रिंसिपल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक डेफिनेशन है डेटा फिड्यूशरी। अभी डेटा फिड्यूशरी कौन है जी? डेटा फिड्यूशरी वो है जो इस डेटा को कलेक्ट करता है। मतलब समझिए जैसे अगर आपका डायमंड का बिजनेस है और आप अपने डायमंड के बिजनेस के लिए आपके पास एक शोरूम है और शोरूम में जो कस्टमर आपके पास आता है उसका डेटा आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको आप व्हाट्सएप बेचते हैं। तो ये जो डायमंड मर्चेंट है या फिर डायमंड का जो ओनर है, ओनरशिप है जिनकी, वो डेटा फिड्यूशरी हुए। माने कि वो सब एंटिटीज जो डेटा को कलेक्ट करके, प्रोसेस करके डिसाइड करते हैं इस डेटा के साथ करना क्या है, वो सब को कहते हैं डेटा फिड्यूशरी।
जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें जाननी है वो है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी क्या होगा? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी बेसिकली एक कैटेगरी बनाई है उन्होंने डेटा फिड्यूशरी के अंदर। इसका क्या मतलब कि अगर लॉ के अंदर आप ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डेटा आपके पास है जो आप मैनेज कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स, आप देखिए बैंक्स जो हैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, अब उनके पास सबसे ज्यादा आप लोगों की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो क्या हुए? वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी हुए। अगर वो डेटा किसी के हाथ में लग जाए तो क्या होगा? अगर वो डेटा किसी के हाथ में लग जाए तो क्या होगा है उससे क्या होगा कि वो जिनका भी डेटा था उन सभी यूजर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसकी वजह से इस कैटेगरी को डेटा फिड्यूशरी या फिर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी कहा जाता है। और इन सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी जैसे बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, इन सब लोगों के ऊपर एडिशनल ऑब्लिगेशंस है जिसके बारे में भी हम इस प्रेजेंटेशन में आगे चलकर बात करेंगे। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कौन है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड वो एक अथॉरिटी है जो इस पूरे के पूरे लॉ को रेगुलेट करेगी। रेगुलेट कैसे करेगी? इसके पास वो सारी अथॉरिटी है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है। जिसका क्या मतलब हुआ? ये बोर्ड आपसे समन कर सकता है इंडिविजुअल्स को, ये आपसे डॉक्यूमेंटेशंस मंगा सकता है, ये प्रॉपर प्रोसीडिंग चलाएगा जैसे कि किसी एक सिविल कोर्ट के अंदर चलती है। ये आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है जैसे कि जो कि हम आगे चल के बात करेंगे कैसी कैसी पेनल्टी लगती है। Now that we have established what all are the key roles, we'll now move to the heart of this presentation or heart of this act, consent. DPDP में कंसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। कंसेंट क्या होता है? आप अगर कोई ऐप पे जाते हो या फिर वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे एक चेक बॉक्स रहता है आई अग्री करके, मतलब आई एम अग्रीइंग टू द प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशंस, तो दैट इज कंसेंट। अभी अगर जब कंसेंट लेना है किसी कंपनी को स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि इट शुडंट बी कोर्स्ड, मतलब इट नीड्स टू बी वॉलंटरी। इफ अ पर्सन इज गिविंग कंसेंट इट नीड्स टू बी इन अ वेरी इजी मैनर, कोई मतलब फोर्स करके कोई कंसेंट, जबरदस्ती करके कोई कंसेंट नहीं ले सकता है। द अदर इज स्पेसिफिक, किसके लिए कंसेंट ले रहे हो, क्या डेटा जाने वाला और कौन सा पर्पस है, उसके लिए आपको कंसेंट देना है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकता है, मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड, people must truly understand what they are agreeing to, मतलब डेटा जो प्रिंसिपल्स रहते हैं they should understand what they are actually agreeing to. So यूजुअली क्या हो रहता है, बहुत सारा लीगल लैंग्वेज में रहता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या कंसेंट दे रहे हो, किसके लिए कंसेंट दे रहे हो, तो सिंपल भाषा में लिखना चाहिए कि ये रीजन के लिए हम आपका डेटा लेने वाले हैं। अनकंडीशनल लेना नीड्स टू बी अनकंडीशनल, बेसिकली वहाँ पे हाँ बेसिकली बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी स्पेशल ऐसा कोई हमने टर्म एंड कंडीशन डाल दिया जिसकी वजह से हम यूजर को जबरदस्ती बोलते हैं कि आप इसके लिए मुझे कंडीशन दो, नहीं तो मैं आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस दूंगा ही नहीं। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसे भी करते हैं कि पहले से ही ना चेक बॉक्स में टिक मार्क लगा के देते हैं, वो प्री टिक्ड चेक बॉक्स रहता है, या फिर मतलब बॉक्स दिखाते ही नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। अभी स्पेसिफिकली सबके मतलब एवरी सिंगल इंडिविजुअल विल हैव टू से आई अग्री टू व्हाटएवर डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। तो अपार्ट फ्रॉम दीज फ्यू प्रिंसिपल्स और तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो स्पेसिफिक डेटा लेना चाहिए, जिस पर्पस के लिए उतना ही डेटा लेना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई डिलीवरी सर्विस देना है, आपको नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लेना चाहिए, वो आप ले सकते हो, पर एडिशनली आप अगर ईमेल आईडी या फिर समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड वो भी लेते हो, वो नहीं कर सकते हो। मिनिमम डेटा चाहिए एग्जैक्टली फॉर व्हाट पर्पस। सेकेंड इज, आप अगर कोई ऐसे ब्रीच होता है, आपने किसी और को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा किसी और को दे दिया है, कोई भी ब्रीच होता है, यू विल बी द फर्स्ट वन रिस्पॉन्सिबल, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा कि आपने कंसेंट एक्चुअली लिया है कि नहीं। और कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अगर मेरा सर्विस ले रहे हो, जो सपोज मैं डिलीवरी एजेंट हूँ, मैं डिलीवरी कंपनी हूँ, मैं डिलीवर करती हूँ, पर आपको अगर मेरा सर्विस लेना है, आपको मेरा प्रमोशनल एड्स भी देखना है, ये कोई नहीं फोर्सफुली कंसेंट करवा पाएगा आफ्टर दिस। ये तो हो गया कंसेंट। इसके बाद आता है नोटिस। नोटिस है एक डॉक्यूमेंट जो जाएगा टू एवरी कस्टमर कि क्या क्या डेटा आप लेने वाले हो, क्यों लेने वाले हो और कैसे कैसे आप यूज़ करने वाले हो। तो एंड ऑल्सो सपोज किसी
इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होती है कि आप उसने खुद का डेटा दे दिया और कोई ब्रीच होता है, तो वो नोटिस में लिखा रहना चाहिए कि आपको अगर कोई इशू है तो आप यहाँ पे कंप्लेन रेज कर सकते हो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे जा सकते हो। तो ये सब क्लैरिटी एक नोटिस में क्लियरली आना चाहिए। हाँ, और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दैट पर्सन नीड्स टू बी देयर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी लागू हो रही है कि आपका इंग्लिश में नोटिस नहीं, सिर्फ इंग्लिश में नोटिस नहीं जाना चाहिए। आपका 22 लैंग्वेजेस है ऑन दी 8th कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हिंदी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, तमिल हो सकता है, बंगाली हो सकता है, उसी लैंग्वेज पे आपको लिखना चाहिए। तो गुजराती कस्टमर्स के लिए गुजराती में लिखना चाहिए, हिंदी कस्टमर्स के लिए हिंदी में लिखना चाहिए, सो पीपल नो कि क्या डेटा जा रहा है और क्यों जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेजिटिमेट यूज। लेजिटिमेट यूजेस, आप कुछ पर्पस के लिए आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं खुद से अपना डेटा दे रही हूँ आपको डिलीवरी के लिए, तो फिर वो लेजिटिमेट यूज में आता है क्योंकि मैं खुद से दे रही हूँ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी। अगर पर्पस से ज़्यादा आपको कुछ करना है, जैसे डेटा एनालाइज करना है या फिर स्टोर करना है या फिर किसी और को देना है, इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आपको वापस कंसेंट लेना ही है। सेकेंड थिंग इज, गवर्नमेंट के लिए भी कंसेंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट जैसे सब्सिडीज देते हैं, लाइसेंसेस देते हैं, बहुत कुछ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट नीड टू टेक कंसेंट स्पेसिफिकली। थर्ड इज मतलब रेगुलेटरी रीजंस के लिए रहता है। और ऑल्सो एक्यूरेसी, डेटा जो लेने वाले हैं वो एक्यूरेट रहना चाहिए। एक्यूरेट क्यों रहना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज, अगर बैंक पे आप जाते हो और आपने आपका इन्फॉर्मेशन दे दिया है और वो इन्फॉर्मेशन गलत है, इन्फॉर्मेशन गलत होने के रीजन से आपको लोन नहीं मिलता है, ये एक्यूरेसी पे प्रॉब्लम है और ये आपका फॉल्ट है। मतलब जो कंपनी ले रहा है, जैसे बैंक नीड्स टू इंश्योर कि डेटा एकदम परफेक्ट है, मतलब एकदम कंप्लीट है और कंसिस्टेंट है। With this, हम अब ये आपसे सवाल चाहेंगे कि आप, अगर आपको कोई सवाल है, अब तक जो भी हमने कवर किया है, हाँ। अगर आपको उसमें कुछ सवाल है तो हम ये प्लेटफॉर्म को 5 मिनट के लिए ओपन करते हैं ताकि आपके हम सवाल ले सकें। Any questions? Short, yes. सर मेरे ने 3 बैंक में अकाउंट है, बराबर? हाँ, तो वहाँ से भी मुझे कई बार लोन के कॉल आ रहे हैं, तो वो लोग भी हाँ। डेटा तो यूज कर ही रहे हैं ना। करेक्ट। हाँ, तो वो लोग भी मिस यूज तो करे होगा ना। करेक्ट। तो इसके हाँ, हाँ, तो इसके बाद तो अभी जो लॉ आएगा, तो अभी जो कंसेंट आएगा ना, तो वहाँ पे ना 2 कंसेंट मतलब होगा, बैंक को देना ही होगा। एक है नॉर्मल बैंकिंग सर्विस के लिए, जो आप जो भी बैंकिंग सर्विस के लिए ले रहे हो। सेकंड इज प्रमोशनल मार्केटिंग। तो आप अगर टिक मार्क नहीं मारते प्रमोशनल और मार्केटिंग के लिए, तो कोई आपको कॉल करके काम नहीं कर सकता है। सो दैट इज एन ऑप्शन गिवन टू यू कि आपको प्रमोशनल कॉल्स चाहिए या नहीं चाहिए। आपको फोर्सफुली कोई हाँ नहीं मतलब बुलवा पाएगा। मतलब उसके लिए बैंक पे जाके मुझे टिक मार्क करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें और एक चीज़ है, बैंक पे अगर आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है उन लोगों के पास, वो लोग आपको एक नोटिस भेजेंगे। आपसे वापस कंसेंट नहीं भी ले सकते क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डेटा रहता है, तो उसके लिए आपको नोटिस भेजेंगे कि आपका डेटा इस रीजन के लिए यूज हो रहा है। सपोज आपका कोई इशू है कि आपको प्रमोशनल कॉल्स नहीं चाहिए, तो आपको बैंक को रीच आउट करना है और उनको बोलना है कि मुझे प्रमोशनल कॉल्स नहीं चाहिए, बंद कर दो। उसके बाद आपको बैंक से कॉल नहीं आना चाहिए। और अगर आता है तो आप ऑब्वियसली कंप्लेन रेज कर सकते हो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे जा सकते हो, उन लोगों का ग्रीवेंस रिड्रेसल है, वहाँ पे जा सकते हो। तो Yeah, madam, we are having another question. यस, Good evening. गुड इवनिंग। The data which we are giving to the Yes. government, यस, the leakage is starting from the government only. From the Yes. government agency only, it is going to the private sector, those people Right. are having. करेक्ट। And that data, government is not protecting to that common citizen. यस, Then how we can believe to the other people? That is the first question. Second question, regarding to the election, we are giving vote to some party, maybe XYZ party, then that vote is going to some other party, then how we can believe that? I want somewhat clear-cut idea from you. for the second, I'll take both the questions Sure. one by one. Right? First question was that if in case, and this is for the Indian people, yes, if in case we have shared some data with the government, right? Now, once we have shared the data with the government, what government does is it leaks it, it shares it with some third person, some private company. Well, this is a very good question. I'll tell you why. Because the law right now calls out what all purposes even the government can collect data from you. And it has specifically called out that only in case of subsidiary,
only in cases of giving you any kind of benefit, a government can take data from you. But once collected, it can then use it without taking your consent, right? But that is only for subsidies. So now there is another act that helps you out, which is your Right to Information Act. Now, in your Right to Information Act, you can obviously write to this government agency and ask them why your data was shared with this entity. Why was this data shared to X entity? You can ask these questions to the government. Even the government is answerable to you under the DPDP Act. It does not mean that एक बार आपसे डेटा ले लिया उन्होंने और वो कुछ भी कर सकते हैं. ये एक्ट उनको भी अकाउंटेबल करता है. आप इसके बारे में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे जाइए. आप इसके बारे में आप इसके अंदर अपील का मैकेनिज्म है. आप उनके अपील पे भी जाइए. Sir, being a common man or layman, how can we oppose or we can challenge to the government or the higher authority? Sir, right now also you have the right in the constitution itself to actually go against the government. That is what we are for. We will help you as a common man to represent your case in front of the court, in front of the government. We will help you out here, right? That's what the law is for. It is for you to be actually safeguarding and in control of your data, right? That's what the part is. Now coming to the second question. Let's say we are voting for one party, but the vote goes to another party, which is probably a very interesting question. I'll tell you the very simple answer here, okay? Let's say you have voted for one person. That data or that vote that you have given is very confidential, but it goes to another party. You can always complain to the election commission. You can always complain to the election commission. In this case also, there is no data that is getting collected. What happens here? There are two things here we need to understand. One is electoral data. That is your voter ID related data, right? If there is any breach regarding that data, that is your electoral data gets leaked. मतलब आपका इलेक्टोरल डेटा पे सपोज आपका नाम है, एड्रेस है और एक और बंदा है जिसका नाम और एड्रेस सेम कर दिया उन्होंने, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा. अब दूसरा एक्शन है, आपने वोट एक को दिया, लग गया किसी और को. इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? वो इलेक्शन कमीशन के एक्ट के अंदर आएगा, जिसके अंदर आपके पास पूरा राइट है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और आप उठा के उनको कंप्लेन करें कि जी मैंने तो इसको दिया था, मेरा लेकिन वोट लगा कैसे. बट आप ये जानेंगे कैसे? आप ये जानेंगे कैसे? मैंने तो दिया था एक्स को, लग गया वाई को, आप ये जानेंगे कैसे? That election commission can give the small slip with us, which is coming which party we are voting. So from that we can come to know that party we are voting. That paper is not given by the election commission. Sir, that's a very good question, and I'm sure I'll be able to help you out. But can I answer that question? Post the presentation is over, I'll definitely help you out. This is basically an election commission related matter. I'll speak to you separately once the presentation is over. Right? Anything else if you guys want to ask? Yes. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कार ली, तो वो कार मैंने लोन पे ली, मैंने पूरा पेमेंट बैंक से करके गाड़ी, ठीक है, तो वो मैंने SBI बैंक से लिया. अभी मुझे कंटिन्यूस पिछले एक महीने से कंटिन्यूस HDFC बैंक से कॉल आ रही है कि आपको बैंक लोन चाहिए, गाड़ी पे लोन चाहिए. मैंने वो ऑलरेडी पे करके लिया है, तभी मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ कि भाई मुझे लोन नहीं चाहिए, तभी मुझे हर रोज 2 कॉल आ रहे हैं. तो मैं उससे हकीकत में बहुत परेशान हूँ. तो उसके रिलेटेड कोई सॉल्यूशन? इसके लिए मैं आपको 2 सॉल्यूशन देता हूँ. ये थोड़ा सा हम DPDP से ऑफ जाएंगे, बट इसके लिए 2 सॉल्यूशन है. एक, अंडर द DPDP यू कैन राइट टू द ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ द बैंक. You can tell them, hey, that I took the car loan from you, and because I took the car loan from you, I've been getting calls because of the data getting leaked to XYZ bank, and these guys have been harassing me. एक ये कर सकते हैं आप दूसरा क्या कर सकते हैं, आप जो बैंक है जिससे आपको बार-बार कॉल आ रही है और उसको आपने कभी कंसेंट नहीं दी, उसके बारे में आप उस बैंक को भी लिख सकते हैं. तीसरा, आप क्या ट्राई को कंप्लेन कर सकते हैं. ट्राई के अंदर आपके पास एक राइट होता है. ट्राई क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उसके अंदर आप जाके कंप्लेन कर दें, उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. हाँ, एक पॉइंट है. अगर ये जो सिचुएशन है, कभी-कभी ये भी हो सकता है कि बैंक के बीच में डेटा शेयरिंग होता है. तो ये जब इम्प्लीमेंट होगा, आपको ये जो नोटिस आएगा ना आपके पास, क्योंकि आप ऑलरेडी कस्टमर हो, आपको नोटिस आएगा कि आपका इन्फॉर्मेशन किस किस को दिया है
किस किस के पास है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर इट्स बीन शेयर्ड विद XYZ, आप पूछ सकते हो कि किस पर्पस के लिए, क्योंकि नोटिस में वो भी लिखा रहेगा कि किस पर्पस के लिए दूसरे बैंक में दिया है आपका इन्फॉर्मेशन। नहीं, ये नोटिस में आएगा और ऑल द बैंक्स विल हैव टू गिव यू अ नोटिस। मतलब कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है और कंसेंट ले लिया HDFC है, का कस्टमर भी नहीं। हाँ मतलब जो ओरिजिनल बैंक जिसका आप Okay. कस्टमर हो, Payment वो किया आपको, है। हाँ वो आपको नोटिस देगा कि किस किस के साथ वो, मतलब ये जो बैंक आपका बैंक है किस किस के साथ उसने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि और किस पर्पस से। तो वो कार वाली कंपनी ने भी शायद शेयर किया। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। तो अब वही चीज है कि हमें ना ये भी देखना पड़ेगा हम किन किन चीजों के लिए कंसेंट दे देते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमने एक फॉर्म भरा है, उस फॉर्म के अंदर उन्होंने 50 चीजें लिख दी हैं, और वो जो 50 चीजें लिख दी है ना, उसकी वजह से आपने इनडायरेक्टली कंसेंट दे दी उनको कि वो किसी के साथ भी डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये भी हमें अपने हाथ में कंट्रोल रखना पड़ेगा। अभी वो ग्रैन्युलर कंसेंट होगा कि क्यों ले रहे हो, मतलब क्या डेटा ले रहे हैं और किस किस के लिए ले रहे हैं। सो ग्रैन्युलर पे आपको समझ में आ जाएगा सब। Thank you so much for all the questions. Now that brings us to the next topic, which is one of the very important topics. कि हमने इतना कुछ बात किया कि हम कलेक्ट करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, हम कैसे कंसेंट लेंगे, बट अब एक बार ये सब कलेक्ट कर लिया, प्रोसेसिंग के लिए मैंने स्टोर कर लिया, बट उसके बाद अगर और आगे करूं क्या, मैं इस डेटा को सिक्योर करूं कैसे, मैं इस डेटा को सेफगार्ड करूं कैसे, उसके लिए भी लॉ जो है वो कुछ आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, आपकी मदद करने के लिए वो कुछ ऑब्लिगेशंस डालता है आप पे, जैसे कि आपको जो है ना उसके अंदर एन्क्रिप्शन करना चाहिए। जो भी आपने डेटा लिया है उस डेटा को आपको एन्क्रिप्ट करके रखना चाहिए। अब एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई डेटा लिया, वो डेटा को लेने के बाद आपके सिस्टम के अंदर वो डेटा ऐसा इस तरह से स्टोर होना चाहिए ताकि कोई और उसको पढ़ ना सके, उसको उस लैंग्वेज में स्टोर करना चाहिए। जैसे अगर आप, मेरा नाम है कृष्ण, तो अब वो कृष्ण जब मैं स्टोर करता हूं अपने सिस्टम में, वो सिस्टम में स्टोर होने के टाइम पे खाली एक अल्फाबेट की तरह स्टोर हो या फिर वो नंबर्स में सेव हो, तो ये इस तरह का कोड क्रिएट करना को कहता है लॉ। ठीक है, तो कुछ अलग अलग और चीजें हैं जैसे कि एन्क्रिप्शन, मास्किंग, टोकनाइजेशन। अभी टोकनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अपन को जो कार्ड होता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है, आजकल कई सारी एप्स के ऊपर ना आपको कहते हैं कि अपना एक कार्ड को टोकनाइज करवा लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका क्या मतलब हुआ, ये एक चीज वही है जो इसके अंदर भी कह रहा है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, उस क्रेडिट कार्ड के नंबर के थ्रू एक रैंडम टोकन बना लीजिए। ठीक है, और ये जो रैंडम टोकन है इसी को इस्तेमाल करिए आप इस यूजर को, इस कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने सिस्टम में, ताकि उस यूजर का जो एक कार्ड का नंबर है वो कहीं और लीक ना हो सके। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ मेथड्स को लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है जो कि हम सब ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लाई करना है। जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब हो गया? सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप पे मैंने बहुत सारा डेटा डाल दिया। अब डेटा डालने के बाद लेकिन वो लैपटॉप मैं ओपन करके छोड़ देता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी आए और कोई भी आके मेरे लैपटॉप पे से डेटा उठा के चले जाए, ये भी गलत है। ये मैं नहीं कर सकता। मुझे इसके अंदर इंश्योर करना है कि अगर मैं मेरे सिस्टम पे, मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे डेटाबेस में कोई भी डेटा रखता हूं तो उसके अंदर प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल माने कोई भी आकर उस डेटा को ऐसे ही नहीं देख सकता, उसकी कोई रीजन होना चाहिए, उसका कोई कारण होना चाहिए कि उसको उस डेटा का एक्सेस चाहिए क्यों। ठीक, और इसके अलावा उसके अंदर जैसे हमने बोला पासवर्ड हो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो, ये सब कुछ हो ताकि वो डेटा को इजीली एक्सेस ना कर सके। तीसरी चीज आती है इसके अंदर मॉनिटरिंग और डिटेक्शन। मॉनिटरिंग और डिटेक्शन का क्या मतलब हुआ? अगर जैसे सपोज हमने कोई भी आके हमारे लैपटॉप को एक्सेस करता है तो कितने बजे आया, कब आया और उसने कितना डेटा एक्सेस किया, इस तरह की मॉनिटरिंग, इस तरह की डिटेल मॉनिटरिंग भी हमें करनी है। ठीक, नेक्स्ट होता है बिजनेस कंटिन्यूटी। अब बिजनेस कंटिन्यूटी का क्या मतलब हुआ? सपोज मैंने अपने सिस्टम को पे डेटा रखा, अब डेटा रखने के बाद वो सिस्टम पे से डेटा उड़ गया, तो अब करूं क्या? तो इसकी वजह से मुझे मेरे सिस्टम पे एक बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब एक बैकअप डेटाबेस। बैकअप डेटाबेस से क्या होगा कि अगर सपोज मेरे सिस्टम पे से डेटा चला गया तो मैं वो तुरंत उस डेटा को वहां पे वापस से एस्टैब्लिश कर सकता हूं और उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। अक्सर क्या होता है हमारे ये जो कई सारे हम लोग ये जो इनवॉइसेस को जनरेट करने के लिए टूल जनरेट यूज करते हैं, कभी-कभी क्या होता है ये टूल यूज करने के टाइम पे ना इनवॉइसेस का सारा डेटा चला जाता है। जब इनवॉइसेस का डेटा चला गया, मेरे कस्टमर के सारे की सारी डिटेल चली गई,
तो अब मैं करूं क्या? तो इसके अंदर ये काम आता है जहां मुझे एक बैकअप सिस्टम चाहिए ताकि मेरे इनवॉइसेस का डेटा जो मेरा चला गया वो वापस आ जाए तुरंत और मैं उन लोगों को वापस से इनवॉइस इशू कर सकूं। तो इसको कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। दूसरी पांचवी चीज है वो है लॉग रिटेंशन। लॉग रिटेंशन होता है कि जो जो डेटा आपने कलेक्ट किया, जो जो डेटा को आपने प्रोसेस किया और किस तरह से प्रोसेस किया, किन किन के साथ शेयर किया, इन सब चीजों का आपको एक रिकॉर्ड बनाना है और रिकॉर्ड बना के आपको अपने पास 1 साल तक रखना है कि आपने वो डेटा कब लिया, कितना लिया, कब तक लिया और कब तक उसके साथ आपने क्या क्या एक्टिविटीज करी और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज करी। अब ये हमें लेकर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के लिए कि अगर आपने ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो मैंने अभी बताए अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं करे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गवर्नमेंट या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आपके ऊपर 250 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकता है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई डायमंड की जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, कोई डायमंड का शोरूम है और उसके अंदर कुछ भी हम लोग डेटा लेते हैं और उठा के फिर बाद में हम किसी XYZ होटल को, XYZ मर्चेंट को डेटा शेयर कर देते हैं और उसके अंदर हम पकड़े गए और हमने इसको सिक्योरली नहीं रखा डेटा, तो इसके अंदर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आपके ऊपर 250 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकता है। अब मैंने जो बात करी ये डेटा ब्रीच क्या होता है या डेटा लीक हो गया, इसको क्या कहते हैं? वेल, इसको कहते हैं डेटा ब्रीच बेसिकली इज अनऑथराइज्ड एक्सेस, शेयरिंग, ऑल्टरेशन, डेटा लीक। अगर सपोज आप हम में से कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय क्या करता है, आपका जो डेटा है वो आपके सिस्टम में से उठाता है और उठा के आपके कॉम्पिटिटर को दे आता है। ठीक, आपके कॉम्पिटिटर को अगर उसने आपका डेटा दे दिया, इसको कहते हैं डेटा ब्रीच इंसिडेंट। अब अगर ये इंसिडेंट होता है तो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है? इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, वो जो भी यूजर है जिसका डेटा लीक हुआ है हमें उसको इन्फॉर्म करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, हमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इन्फॉर्म करना है तुरंत, कोई इसके अंदर देरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो काम है वो है हमें हमारे एंड पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है। उस डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर हमें ये लिखना है कि ये डेटा कहां से आया और कब डेटा ब्रीच हुआ और डेटा ब्रीच होने के बाद मैंने उस पर क्या क्या एक्शन किया ताकि मैं उसको डेटा ब्रीच को रोक सकूं। ये सारी डिटेल रिपोर्ट बना के आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को 72 आवर्स के अंदर सबमिट करनी। और अगर आप ये नहीं करते जो कि मैंने अभी बताया तो भी आपके ऊपर 200 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है और 200 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। अब ये जब हमने डिस्कस किया डेटा ब्रीच और ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशरीज, अब हमें नेक्स्ट चीज होती है अगर मुझे डेटा डिलीट करना हो। अगर मुझे डेटा डिलीट करना हो या फिर मैं बैंकिंग सेक्टर से हूं, मुझे डेटा रिटेन करना हो, तो वो मैं कैसे करूं और किन किन सिचुएशंस में कर सकता हूं? तो अभी अगर आप लोग डेटा प्रिंसिपल्स हो, आप बैंक पे, आपका बैंक अकाउंट है और आपको अपना कंसेंट विथड्रॉ करना है, तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो फॉर विथड्रॉल ऑफ कंसेंट। इस टाइम पे आपका बैंक विल हैव टू डिलीट योर डेटा, विल हैव टू डिलीट योर अकाउंट एंड योर डेटा। द अदर इज अगर ओरिजिनल पर्पस ही खत्म हो जाता है, जैसे आपने आप खुद का डिटेल दिया है कार शोरूम को टू बाय अ कार और कार आपने खरीद लिया है, खत्म हो गया, उसके बाद भी आपका जो डेटा है कार शोरूम के पास, these guys will have to delete the data. थर्ड इज अगर आप कोई ऐप में हो और वो ऐप में आप बहुत दिन से इनएक्टिव हो, मतलब महीने से इनएक्टिव हो, उस मोमेंट पे भी जो कंपनी है, जो डेटा फिड्यूशरी है, उनको भी डिलीट करना है डेटा। तो कोई भी इन तीनों में से जो भी फर्स्ट होगा वहाँ पे आपका डेटा डिलीट होना चाहिए। एक ही रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनीज को डेटा डिलीट करने का रिक्वेस्ट भेजा है, कंपनीज कैन कीप द डेटा, मतलब आप लोग जो डेटा फिड्यूशरी रहते हैं कंपनीज, दे कैन कीप द डेटा फॉर 1 ईयर और ये पर्पस सिर्फ ओनली फॉर लीगल ग्राउंड है। जैसे अगर कोई ब्रीच आता है 2-3 महीने के बाद आपको समझ में आता है कि कोई फ्रॉड हुआ है, आप जब लीगल कंसर्न रेज करते हो उस कंपनी के पास, that person will have to have that data to resolve that breach. तो 1 साल के लिए कंपनी को रखना ही चाहिए only for this purpose, but कोई और रीजन के लिए वो डेटा यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ फॉर रेगुलेटरी पर्पस। सेकेंड टॉपिक इज डेटा प्रोसेसेस। नाउ इसमें क्या होता है कि आप जब
जो कंपनीज है, बहुत सारा अलग अलग कंपनीज है। आपका एग्जांपल मैं ले रही हूँ, बैंक है, बैंक के साथ मतलब दो बैंक है, तो डेटा फिड्यूशरी यहाँ पे जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है कोई वेंडर के साथ या फिर डेटा प्रोसेसर के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्सटाइल कंपनी हूँ और मेरे साथ एक डिलीवरी एजेंट भी एसोसिएटेड है, तो इन दैट मोमेंट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए बिटवीन द कंपनी एंड द डिलीवरी पार्टनर, देयर नीड्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको सर्टेन रेगुलेशन मतलब सर्टेन सेफगार्ड्स यू हैव टू इंश्योर कि उस कॉन्ट्रैक्ट में रहे। For example, the data processor will also need to keep a proper security safeguard in place. They need to ensure that data is only for that specific purpose. So, for example, अगर एक textile company is giving the data to a data processor, which is a delivery agent, उसी purpose मतलब delivering के लिए ही वो data retain कर सकता है. Beyond that, they have to delete the data. And third is deletion and retention. अगर customer खुद ही voluntarily पूछ लिया है कि मेरा data delete करो, so data fiduciary company tells the delivery agent कि आप भी delete कर मतलब आपको भी delete करना है। तो ये पूरा ट्रेल रहना चाहिए अग्रीमेंट में। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इज चिल्ड्रंस डेटा। आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, तो अभी पेरेंट्स का क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे फ़ोन में बहुत सारा ऐप्स खोल के बैठे रहते हैं। तो ऐप्स ना क्या करते हैं, उन लोगों का बिहेवियर एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद एड्स देते हैं। तो इसमें ना बहुत डेटा ब्रीच होता है। सो रिसेंटली मतलब कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ निकला है कि सोशल मीडिया इज बैंड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16। सो सिमिलरली यहाँ पे भी 18 इयर्स चिल्ड्रन 18 इयर्स ऑफ एज के बिलो अगर आपका ऐप यूज कर रहा है तो उसका पेरेंट्स या फिर लॉफुल गार्डियन का कंसेंट चाहिए। चाइल्ड कैन नॉट गिव अ कंसेंट। वैसे भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स अ चाइल्ड कांट गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो खुद ही मतलब नॉर्मली वॉइड ही रहता है। सो इसलिए पेरेंट्स का कंसेंट इज मैंडेटरी। सेकेंड, यहाँ पे ऑल्सो फॉर डिसेबल्ड पीपल द सेम राइट अप्लाइज। तो मैं अगर चिल्ड्रन बोल रही हूँ, द सेम राइट अप्लाइज टू डिसेबल्ड पीपल वेयर अ पेरेंटल और अ गार्डियन कंसेंट नीड्स टू बी इन प्लेस। और ये जो वेरीफाइबल हमने बोला कैसे कंसेंट वेरीफाई करना है, वो जैसे अपना डिजी लॉकर हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमें 2 लेयर पे वेरिफिकेशन करना है। पहले हमें बच्चे का अपना वेरिफिकेशन करना है, फिर उसके बाद उनके पेरेंट का भी वेरिफिकेशन करना है। इंटेंट क्या है? इंटेंट क्या है कि जो पेरेंट है वो वेरीफाई कर सके अपने बच्चे का इस्तेमाल करना उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को। ये सबसे ज्यादा लागू होता है एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे। आज हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और उन पे जाकर बहुत ज्यादा कोई ना कोई पोस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं जाके अपना डेटा शेयर करते हैं। अक्सर ये कॉन्वर्सेशन वीडियो वाली होती है, ठीक है, इसके अंदर उनका बायोमेट्रिक डेटा भी जा रहा होता है। बट क्या ये एडटेक प्लेटफॉर्म्स हम लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंसेंट लेते हैं? नहीं, ये हमसे कंसेंट नहीं लेते हैं। हमारे बच्चे जो हैं उसी भी तरीके का डेटा वो स्टोर करते हैं और बच्चों को फिर वही चीज दिखाते हैं जो वो चाहते हैं, कंपनियां चाहती हैं उन्हें दिखाना। ओके, तो एक ही कार्व आउट है इन दिस एंटायर थिंग। अगर चिल्ड्रन का डेटा फॉर हेल्थ केयर सर्विस और एजुकेशनल पर्पस मतलब स्कूल कॉलेज पे प्रोसेस होता है, तभी आप वेरीफाई, तभी पेरेंट्स का कंसेंट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो तभी वेरीफाइबल कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर ब्रीच होता है, मतलब आपके पास एक ऐप है और चिल्ड्रन आर एक्चुअली डूइंग समथिंग इन द ऐप और आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तभी आपके ऊपर 200 करोड़ का पेनल्टी लग सकती है। एक वन मोर थिंग इन दिस चिल्ड्रन एस्पेक्ट, कभी भी एज अ डेटा प्रोवाइडर एज अ प्लेटफॉर्म यू कैन नॉट मॉनिटर बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये मॉनिटर होती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म में। ये एब्सोल्युटली बैंड है, मतलब यू कांट डू इट। इफ दैट हैपेंस कि आपका चाइल्ड का डेटा ऐसे एनालाइज हो रही है तो वापस 200 करोड़ का पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा प्रिंसिपल। नाउ डेटा प्रिंसिपल्स राइट्स इज अस, मतलब हमारा डेटा कंपनीज जो यूज करते हैं, तो हमारा राइट क्या क्या है। फर्स्ट राइट है इरेजर, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि और यूजर कैन विथड्रॉ द कंसेंट। तो जैसे इजी रहता है ना कंसेंट देना कि चेक बॉक्स में आपने कंसेंट दे दिया है, उतना ही इजी होना चाहिए विथड्रॉइंग ऑफ कंसेंट कि एक चेक बॉक्स से आप अनक्लिक कर दो, या फिर एक विथड्रॉ कंसेंट का ऑप्शन रहना चाहिए जहाँ पे आप डेटा प्रिंसिपल कैन विथड्रॉ द कंसेंट। सेकेंड इज राइट टू करेक्शन एंड इरेजर। तो अगर मैंने अपना डेटा दिया है रितिका दास लिविंग इन XYZ एड्रेस,
अभी मेरा एड्रेस चेंज हो गया है तो मुझे वो मॉडिफाई करना है, तो वो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट मैं रेज कर सकती हूँ, या फिर अगेन मुझे विथड्रॉ या फिर इरेज करना है वो भी मैं कर सकती हूँ। थर्ड इज ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर कोई मुझे इशू होता है तो मैं किसके पास जाऊँ, तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल या फिर वो कॉन्टैक्ट पर्सन who's going to solve the problem for you, उसका नंबर भी रहना चाहिए in a notice or in the consent form of the company, and the person, the data principal, has the right to request whatever the problem is with the grievance redressal. Fourth is right to consent managers. Now consent manager एक बहुत ही नया, you want to take consent manager? कंसेंट मैनेजर एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट निकाला है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जाएगा जिसके अंदर आप जाकर अपने सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी की सारी कंपनियां जहां पे आपने कंसेंट दिया है वो सब कुछ वहां एक कंसेंट मैनेजर के पोर्टल पे दिखेगा। मतलब एक समझ लीजिए कि एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है जिसपे आप जाइए और अपना नाम और एड्रेस डालिए और आपको पता चल जाएगी आपके नंबर से एसोसिएटेड कितनी जगहों पे कंसेंट आपने दिया हुआ। तो इसी तरह के इस चीज को कहते हैं कंसेंट मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है कि कई सारे ना टूल्स होते हैं जिसको हम लोगों ने डेवलप करा है और हमारी कंपनियां हैं जो आजकल डेवलप कर रही हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि किस तरह यूजर से कंसेंट ली जाए। अब हमने सुबह अभी बात करी कि कैसे कंसेंट लेनी है, कैसे स्पेसिफिक पर्पस दिखाना है, कैसे नोटिस देना है। ये कंसेंट मैनेजर टूल यही करता है। ये कंसेंट मैनेजर टूल आपके लिए एक नोटिस बनाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप यूजर को वो नोटिस भेज सकें और कंसेंट ले सकें। इसके लिए वी हैव नैनेश शाह who is actually our co-founder for Consent-Take and a developer for Consent-Take. He is actually developing a consent management tool. You guys can speak to him post this conversation is done and he'll brief you about what all he has done for that Consent-Take tool. He'll help you out with that. ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो पर्सन रहना चाहिए वो एवरी सिंगल कंपनी नीड्स टू हैव वन कॉन्टैक्ट पर्सन जिसके पास एक डेटा प्रिंसिपल कैन रेज अ रिक्वेस्ट और अ कंप्लेंट। वहाँ पे 90 डेज के विद इन आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा इशू दैट हैपेंस। And this brings us to the next topic of cross-border transfer. But cross-border transfer में क्या होता है कि कई सारी organizations हैं जिसके साथ हमारा पार्टनरशिप होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर कंट्री में रहती है, जिसके अंदर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं इंडिया से अब्रॉड। अब अगर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं इंडिया से अब्रॉड तो वो हम अलाउड लॉ क्या कहता है कि आप ये डेटा शेयर कर सकते हो अब्रॉड में शेयर, लेकिन इंश्योर करिए कि ये डेटा सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे जाए जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, उन कंट्रीज पे ना जाए जहां पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। ठीक, इस अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी, जो कि मैंने पहले एड्रेस किया था। तो अब उसके बारे में मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि क्या क्या एडिशनल ऑब्लिगेशंस है। एडिशनल ऑब्लिगेशंस क्या है कि आपको एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है, तो वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज जो कि बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस डेटा हैंडल करते हैं, सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं, उन सभी को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है। उनको एक ऑडिट करनी है जिसको कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट ऑडिट। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जितना भी हमारा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती है उसको हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, हमें एज अ डेटा फिड्यूशियरी या फिर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी हमें यूजर को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है, जो कि उसका राइट है। क्योंकि उसका राइट है और हमें उसको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है, इस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर हमें उसके लिए एक ऐसा सिस्टम पैदा करना है कि अगर यूजर कोई हमारे पास इशू लेकर आए तो हम उसको 90 डेज के अंदर सॉल्व कर सकें। और उसके अंदर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, उसकी तरफ से कुछ भी आ सकता है, जैसे समझ लो माय डेटा इज बीइंग मिसयूज्ड, आई कैन नॉट गेट माय डेटा करेक्टेड, माय इरेजर रिक्वेस्ट इज बीइंग इग्नोर्ड, इस तरह का कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वेरी आ सकती है और आपको उसको 90 डेज के अंदर रिजॉल्व करना है। जो नेक्स्ट चीज हम आपके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे वो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी। अब जब ये सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी तो एक बहुत ही यूनिक चीज जो लॉ कहता है वो है कि ये सारी की सारी प्रोसीडिंग इस लॉ इस बोर्ड की डिजिटल होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर डेटा प्रिंसिपल या फिर हम यूजर्स को कोई कंप्लेन है तो हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं।
हम यहीं से सूरत बैठे बैठे डिजिटली ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, डिजिटली ये कंप्लेंट को की हियरिंग को अटेंड कर सकते हैं और उसके अंदर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो है ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को 6 महीने मिलते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी हियरिंग को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसके अंदर उन्होंने लॉ ने आपके लिए एक टाइमलाइन भी फिक्स कर दिया है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील होती है तो वो अपील भी जा सकती है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्राइब्यूनल को। अगर कोई भी अपील हो तो आप वहां कर सकते हैं। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है पेनल्टीज, जिसके ऊपर जैसे कि मैंने कहा कुछ एरियाज में बहुत ही ज्यादा हेफ्टी पेनल्टीज लगी हैं, जैसे कि फेलियर टू कंप्लाई विद द रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, जो कि मैंने सिक्योरिटी सेफगार्ड्स कहे थे पहले, टोकनाइजेशन, मास्किंग, ये सब अगर आप नहीं करते तो 250 करोड़ की पेनल्टी। अगर आप डेटा ब्रीच को नहीं नोटिफाई करते हैं यूजर्स को या फिर बोर्ड को तो उस पर 200 करोड़ की पेनल्टी। अगर आप चिल्ड्रन का डेटा यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं अपने एंड पे और उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो भी उस पे 200 करोड़ की पेनल्टी। अगर आप सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी हैं और आप उसके ऊपर जो एडिशनल ऑब्लिगेशंस है वो भी नहीं कंप्लाई कर रहे हैं तो उस पे 150 करोड़ की पेनल्टी। अगर आप डेटा प्रिंसिपल हैं और उसके आपकी कुछ ड्यूटीज होती है एज ए डेटा प्रिंसिपल, अगर वो डेटा प्रिंसिपल की ड्यूटीज भी आप कंप्लाई नहीं करते तो उस पे आपकी 10,000 की पेनल्टी है। तो इन सब चीजों की वजह से ये लॉ एक बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी लॉ हो गया है आपको। अब इसकी वजह से हम आपको अब सीधा अब आगे करना क्या है उस पे लेके जाते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 10 महीने रह गए हैं। इन 10 महीनों के अंदर अंदर मुझे इस एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई करनी है, तो क्या करूं? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गैप एनालिसिस करके एक स्कोप है जो आपको करना है। वो है कि आपके पास क्या क्या प्राइवेसी क्या क्या पर्सनल डेटा आपके पास है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है एंड इज इट कंप्लायंट विद दिस डेटा प्राइवेसी लॉ, व्हिच मींस कि आपके पास नोटिस, कंसेंट, ऑल ऑफ दिस इज देयर और नॉट, ये आपको एनालाइज करना है। सेकेंड इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आपका कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी नीड्स टू बी अपडेटेड। वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में आपको क्लियरली लिखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लेने वाले हो डेटा यूजर्स से, कैसे कैसे यूज करने वाले हो और उन लोगों का राइट्स क्या है कि अगर विथड्रॉ करना चाहता है तो कैसे विथड्रॉ करना चाहता है, अगर कंप्लेन करना है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर को कैसे, कौन सा ईमेल आईडी पे वो कांटेक्ट करे एक्सेट्रा। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको अपडेट करना है। थर्ड इज नोटिस। जैसे कंसेंट आप लेने वाले हो तो उसके पहले जो नोटिस जाना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, कैसे प्रोसेस करना है, वो नोटिस भी ड्राफ्ट करना है। प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी नोटिस ड्राफ्ट करना है कि आपका इन्फॉर्मेशन ऐसे यूज हो रहा है। और टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन तो है ही, जैसे आपका सिक्योरिटी सेफगार्ड, इंक्रिप्शन एक्सेट्रा, जो भी सपोर्ट बैक एंड पे करना है वो तो करना ही है। वेंडर मैनेजमेंट, आपका जो वेंडर्स है, डेटा प्रोसेसर्स जिसको हम बोलते हैं, उनके साथ अग्रीमेंट आपको वापस देख के सब सिक्योरिटी मतलब जो भी क्लॉजेस है मैंडेटरी फॉर अ डेटा प्राइवेसी पर्सपेक्टिव, वो सब क्लॉजेस डालना चाहिए। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, आपको ट्रेनिंग भी करना है टू एवरी एम्प्लॉय, एवरी पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद ऑन हाउ द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, हाउ इट्स बीइंग शेयर्ड, तो ट्रेनिंग करना है टू मेक देम अवेयर। एंड लास्ट इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। एक बार अगर कर लिया, इट डजंट एंड देयर, आपको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए कि आप कंप्लायंट हो कि नहीं विद दिस डीपीडीपी, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपने डेटा शेयर कर लिया विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, तभी वापस आ जाएगा ब्रीच, या फिर यू आर स्टार्टिंग टू प्रोसेस चिल्ड्रंस डेटा, वापस आगे आ जाएगा ब्रीच। तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर और ऑडिट करना चाहिए अपना डेटा एंड हाउ यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द डेटा। With this, we conclude the presentation. Thank you so much for attending this presentation. Thank you so much for giving us the opportunity of taking this presentation. Thank you so much. No, we have a couple of a little bit of interaction. इतना अच्छा नहीं। हमसे अच्छा है आपका। No, fair enough. So on behalf of the audience, we'll have a couple of questions from my side only. I think they will represent the majority of the mind of audience also. You mentioned about the duty of data principle. So rather than the companies, most of them are individuals here. So we
એટલે ડેટા પ્રિન્સિપલ એટલે આપણે બધા हम सब लोग तो हमारी क्या ड्यूटीज है जरा शॉर्ट में आप बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। आपकी ड्यूटीज है कि जैसे आपको अपना जो डेटा है वो करेक्टली मेंशन करना है। क्या करेक्टली मेंशन करना है? अगर आपने वहां पे अपना मोबाइल नंबर डाला है और आपने मोबाइल नंबर कल को जाके उसको ठीक नहीं किया, अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, मानो आपने नंबर चेंज कर दिया, आपने एड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन आपने अपडेट नहीं किया, तो वो एक आपकी गलती हो जाएगी। like basically imposing as someone else. So suppose I am Ritika पर मैंने खुद का नाम कुछ शिवानी खुद डाल दिया है और कुछ और मतलब मेरा फेस या किसी और का फेस यूज कर दिया है, तो दैट इज आल्सो योर थिंग क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, सो दैट इज विल बी तो जैसे लाइक भाई साहब ने बताया कि मैंने यहाँ से लोन ली थी, दूसरे बैंक से कॉल आ रहे हैं, हाँ तो कॉल आ रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि किस कारण से आ रहे हैं, तो हाउ डू आई कंप्लेन? करेक्ट। सो फॉर दैट एज व्हेन वी बेसिकली स्पोक, यहाँ पे क्या होता है ना, यूजुअली बैंक्स और जो अदर कंपनीज है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहता है डेटा फिड्यूशरी टू डेटा फिड्यूशरी। अभी जो होने वाला है, आपको जो नोटिस आने वाली है फ्रॉम द कंपनी, आपको क्लियरली लिखा रहेगा कि आपका डेटा इस कंपनी को यूज, मतलब मे बी नॉट द नेम बट इट विल बी यूज, इट विल बी सेइंग दैट योर डेटा शेयर्ड विद इंश्योरेंस कंपनीज और योर डेटा विल बी शेयर्ड विद बैंक्स। तभी आप रेज कर सकते हो कि व्हाई व्हाट्स द पर्पस, दैट शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द नोटिस। दैट इज द पॉइंट इज कि उसको छोड़ो, हाँ। मेरे पास में कॉल आ रहा है, हाँ अब मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, कहां से ये डेटा इसके पास में कहां से आया वो ही नहीं पता मुझे, तो मैं कैसे कंप्लेन? आपके पास दो तरीके हैं। मैं आपके पास दो तरीके क्या हैं कि आप जिस बैंक से कॉल आ रहा है उसके डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को पास के हाउ डू यू गेट हाँ। आप बताएं कि आप मेरा डेटा क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, मेरे पास ये कॉल क्यों आ रही है जब मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर किया ही नहीं, ये मैं आपका समझ- कस्टमर ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। दूसरा एक चीज है ट्राई क्या। ट्राई, मुझे पता है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नहीं है इस डिस्कशन का, लेकिन ट्राई भी आपकी इसमें मदद करता है। ट्राई के अंदर क्या करना है, आप अपनी सीधा एक आपके पास सबके पास कोई ना कोई नेटवर्क होता है मोबाइल प्रोवाइडर्स का, जैसे एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, उन सबकी एप्लीकेशन होती हैं। उन एप्लीकेशंस पे जाके कंप्लेंट दर्ज करिए कि मेरे पास इस पर्टिकुलर बैंक से कंप्लेंट्स आ कॉल्स आ रही हैं जबकि मैंने डीएनडी अप्लाई किया हुआ है, जबकि मैंने मना करा कि मैंने कभी कंसेंट ही नहीं दी। जब मैंने ट्राई स्पेसिफिकली कहता है, बल्कि डीपीडीपी से पहले ट्राई ने कंसेंट का नॉर्म निकाल दिया था कि आपको हर यूजर से एक्सप्लिसिट कंसेंट लेनी है, ताकि उसके बिना एक्सप्लिसिट कंसेंट के आप कॉल नहीं कर सकते उसको। चलिए, we have one more thing rapidly. You talked about consent manager. So it appears to be a very innovative and important perspective. It appears that consent manager would be managed by, would be fed by the companies also, and I can see my consent also. correct. So it's actually made for people. Principals. Not for the company. So what is the login like? You know, my Aadhaar card or what? So इसके अंदर भी this is going to be let's say exactly what you said plus also more to it. How do I want to explain? How do I access it? Access it. So there are two ways to go about it. There are consent manager tools which will integrate with the ongoing platform of a particular company. That's one way. That is, for example, if you have gone to different websites, there are certain cookie policies that are there, right? When you look at the cookie policies, there's a pop-up that shows up when you go on that website. When you look at those cookie policies, there are necessary policies, there are preferred policies. You can just click on the preferred policies, select what you want, what you don't. Necessary policies. This is exactly how consent manager tool can look like. That's one of the ways. But this is only when a tool is integrated with the company's product. That's one way. Second way is a centralized method, wherein the centralized method is going to look like you probably provide your mobile number, you provide your name, and once you have provided your mobile number and your name, wherever this number in the entire digital ecosystem is available and where you have given consent, it will be shown in that consent manager tool. But it will, and my understanding, will be registered with a central consent manager tool which will be operated by the government. The way we have it for Aadhaar. So as of now, it appears that would the consent managers be a private tools or a government-based centralized tool? It is a still dilemma. See, so there are, again, if you see right now, how CKYC operates or how the KUA industry operates, they have a central CKYC system and they also have a localized or privatized KYC system. It will be probably a mix of both. There will be a centralized consent manager tool. So his tool will be integrated with the centralized tool. Correct. Very. So one quick question, yes. Yes. Small question. We have most of the time we have heard that your
information from your phone can be stolen by somebody. If you put your phone in the bag, I don't know what type of equipment is that, but if somebody scans that phone and immediately your data is being transferred to the, what is that system and how to protect that system that Yeah. somebody can steal your data or steal So- all the information that you have in a fraction of a second? Yes, absolutely, sir. That's a great question. So to address that, you want to take that? So to address that, the simple thing is, again, like I said, there has to be certain security protocols, security methods that you have to implement in your phone itself. So generally, when we have all of our data in our phone, it gets scanned. What happens? There has to be some sort of protection in your phone also, that you do not have, and it does not allow any kind of masking or any kind of scanning or any kind of duplication that can happen from your phone itself. One more thing, this is called metadata tracking. So what happens is metadata is your device ID, it's got your algorithms, your logs, etc. So companies tend to track your metadata and give you either, like, suppose you're talking about ketchup today, tomorrow you'll start seeing ads of ketchup, but you're just speaking about it. So that kind of is like a tracking that they do. With this whole app, they can't do it. Some companies still will probably be doing it, but you can sue them. So for example, recently you must have seen WhatsApp was sued for a very huge number because there was a lot of these back-end things that they were doing which was illegal. This entire thing was actually got against them, so, and you can sue them for a large amount of money. So this is illegal, but it's called metadata tracking. But is there anything, because now we have a password in this, so Yes. nobody can open it. But while they steal that or they scan it, how they can open it, because the password is there? Can they have a password as well? Because whatever the password that we set in our phone, I don't think it's related to the password, sir. It's more related to like the app that you've opened and the app is tracking you. So for example, if you've opened WhatsApp or maybe Facebook or Instagram, that app is basically tracking your behavior. It's got nothing to do with your phone password because those logs are with you. Oh. But how you are going about it, that's metadata. That's the backend way they basically check. According to your device ID, they have that granular level pay analysis they can actually do, and they are doing it. so They're they getting cannot sued. open the phone, but they can open the app that you are working on. And Yes, that correct. So it's app based. It's app. Yes, next. Okay, yes. Yes. Is there any provision in this act to compensate the person whose information is leaked or infringed? Yeah, sir. So all these penalties that I spoke about, ये penalties government को नहीं जाएगी, ये सब की सब उस यूजर को जाएगी या उन यूजर्स को जाएगी जिनका डेटा लीक हुआ है या जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है. I think 200 crore is actually for company. सर एक कंपनी आपकी मदद के लिए किसी कंपनी को 200 करोड़ की पेनल्टी की गई, किस लिए की गई कि 5000 लोगों का डेटा उन्होंने मिसयूज किया. उन 5000 लोगों पे ये 200 करोड़ बांटने का प्रावधान है. अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं. बस सीधी सी बात. आपको पैसा चाहिए तो करो. पैसा I have one question, practical question है. आपने कंसर्न की बात की. एक प्रैक्टिकल सिनेरियो ले लेता हूँ. जैसे मैं गाड़ी परचेस करने जाता हूँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ गाड़ी देखने के, इसका फीचर्स देखने के लिए. वो लोग फॉर्म लेके या डिजिटल फॉर्म लेके आ जाता है और कंसेंट साइन कर देता है, तो करवा लेता है. It's like I agree terms and conditions. So उस टाइम पर हम लोग इतना सोचते नहीं, वो प्रैक्टिकल थिंग है. और उसके बाद तो वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि ये तो आपने कंसर्न दिया था, आप देता हम कभी कहाँ पे भी जा सकता है. तो उसके लिए क्या हम इसी के लिए नेक्स्ट स्टेप आता है जिसके अंदर आप जहां आपने कंसेंट दी है ना, उन्होंने अगर आपसे कंसेंट दी है तो वो आपको एक और प्रावधान देते हैं कि आप उस कंसेंट को रिवोक कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो. विड्रॉ कर सकते हो. और जाने के बाद हम सोचते हैं. As an advice, I would say read it. क्योंकि आप companies will not, even if it's granular, कि आपको बोलेगा कि consent आप दे रहे हो for XYZ, some people might not do it. You should read whatever you are saying yes to. Suppose आपने yes बोल दिया है और बहुत कुछ and then you go ahead and withdraw, because if you've consented to it, sorry, unfortunately वो. बस ये प्रैक्टिकल है. जैसे I agree and terms and conditions कुछ रीड नहीं करते, ऐसे ही टिक करते, ऐसा ही होता है. आई एग्री में आपने साइन कर दिया है,
तो अब आपके पास में आइडेंटिफाई करके रिवोक करके इसके अलावा कोई Provision है। चारा नहीं है, इसलिए जो हो करते समय जो भूतकाल में हो गया वो हो गया, अब ध्यान रखने का टाइम है बस इन शॉर्ट। यस, इफ नोबडी एल्स माय चेयरमैन हैज अ क्वेश्चन। मेरे बहुत स्मॉल प्रैक्टिकल यस, दैट इज गुड। कि भाई मान लो कि मैंने इनका फोटो खींच लिया, तो इज इट कंसिडर एज ए कंसेंट? जनरली ऐसा होता है कि आप हम एक दूसरे का फोटो खींचते हैं और आपने भरोसे पर फोटो एक लड़की का खींच लिया मैंने, फिर वो कहीं पे मिसयूज होता है या फिर वो क्या बोलते हैं मॉर्फिंग हो जाता है, ये जो है तो बाद में जाके ये जो आदमी जिसका मैंने फोटो खींचा उसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोलेगा कि मैंने कोई कंसेंट नहीं दिया था। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना है, किसी लॉयर ने बोला है कि वंस आपने खड़े होकर फिर फोटो खिंचवा लिया, दैट मीन्स यू कंसेंटेड टू टेक योर फोटो, बाद में आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते। सर इसके अंदर ना दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो है डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब मैंने अपने पापा की फोटो खींच ली, पापा की फोटो खींच के मैंने अब इधर उधर शेयर कर दी, ये है डोमेस्टिक यूज। ये है एग्जेम्प्टेड अंडर द लॉ। इस चीज को ये रेगुलेट नहीं करता है। दूसरी चीज हुई, मैंने किसी स्ट्रेंजर की फोटो खींच ली छुपके से, जो मैंने छुपके से फोटो ली है ना उसके अंदर मैंने कंसेंट नहीं लिया। अब अगर मैंने किसी की भी छुपके से फोटो खींच ली और फिर उसके बाद मैंने किसी के साथ शेयर कर दी, वहां मेरे पास कंसेंट नहीं है। अब जो तीसरा इंसिडेंट आता है जो कि आपने बोला कि उस यूजर ने मेरे सामने खड़े होकर मेरे को बोला कि मेरी फोटो खींच, मैंने फोटो खींच दी और फिर खींचने के बाद उसको इधर उधर शेयर कर दिया। सर ये होता है वॉलंटरी शेयर। उस यूजर ने मेरे साथ उस टाइम पे वॉलंटरली होके शेयर किया, वो अपनी इच्छा से मेरे साथ वो डेटा शेयर कर रहा है, तो इसकी वजह से उसने मुझे पार्शियली अपनी वॉलंटरी एस्पेक्ट में डेटा दिया। But if you're resharing it with someone else without the person's consent, वो गलत है। क्योंकि मैंने मान लो कि हमारे प्रेसिडेंट और हम हैं, हमारा फोटो तो कहीं पे भी जाते हैं कोई भी खींचता है। मैं किसी इनॉग्रेशन में गया, कोई शॉप का ओपनिंग है, मुझे बुलाया, वहाँ मेरा फोटो खींच लिया, तो मैं तो वहाँ ना नहीं बोलूँगा पहले चलो लाओ साइन, ऐसा तो प्रेसिडेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसने बाद में कहीं पे रख दिया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस? सर हाँ, इसके अंदर सर दो चीजें हैं। सर उसने जब आपकी फोटो खींची, उसने एक चीज के लिए ली ताकि अपना प्रमोशन कर सके, अपना मार्केटिंग मटेरियल में आपको आपका पिक्चर दे सके, आपको रिकग्निशन दे सके। सर उसने सिर्फ इस चीज के लिए आपकी फोटो खींची थी सर। बट अगर वो उसके ऊपर फोटो खींचने के बाद वो उठा के आपकी जो फोटो है चैट जीपीटी पे डाल देता है, वो बोलते हैं कि चैट जीपीटी काइंडली इसके ऊपर मल्टीपल और इमेजेस बनाए, सर ये गलत। सर ये क्या उसके लिए सर अगेन इसके अंदर आप उसके अगेंस्ट भी यूजर जिसने कंप्लेंट करी, जिसने फोटो खींची है उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हो। उस किस्से में उसको मेरी कंसेंट मानी नहीं जाए। हाँ जी, इस पे आपकी कंसेंट। एग्जैक्ट। दूसरा एक सवाल कि मेरा जो लड़का है वो बोलता है कि मान लो आप मोबाइल पे स्क्रीन वो आप क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्क्रॉलिंग, वो नहीं आता है, स्क्रॉलिंग करके मान लो आपको कुछ पसंद आ गया, कुछ आपने देख लिया, मान लो कि कोई भजन किसी का मैं सुनता हूँ, तब वापस टून करोगे तो वही पहले आएगा। ऐसा है क्या? वो आपको वो समझ लेता है कि इसको ये पसंद है, तो वही चीज देता है, तो उसके लिए तो वो गलत देखना नहीं है, मैं मैसेज ये देख रहा हूँ, गलत तो देखना नहीं है, मैं मैसेज आपको ये दे रहा इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मेटा डेटा कहते हैं सर इसको, अगर आपने या फिर एल्गोरिथम डेटा कहते हैं सर, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ऐप देखी जिसके ऊपर आपने स्क्रॉल करते करते एक तरीके का कंटेंट देखा, फिर हर कंटेंट आपको उसी का आता है सर। इस चीज के लिए भी उन्हें एक्चुअली में आपसे कंसेंट लेनी होती है। कंसेंट किस चीज की लेनी होती है? ये जो मेटा डेटा वो आपके लिए क्लिक एनालाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, इसकी आप कंसेंट वो आप उनको आपसे लेनी चाहिए। अगर वो आपसे इस चीज की कंसेंट नहीं लेते हैं, इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रेफरेंशियल एड्स। आप अगर चाहें तो जाकर आज भी इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया पे प्रेफरेंशियल एड्स को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप वो स्टॉप करते हैं तो यूजुअली टैप ऐसे स्वाइप करने के बाद कंटेंट वापस जो आता है वो कभी नहीं आएगा। हाँ, और एक चीज ये इसमें ना कुकी बैनर्स करके एक बैनर आती है पॉपअप, जो अब्रॉड अगर जीडीपीआर कंप्लायंस रिलेटेड कोई वेबसाइट पे जाओ, एक कुकी बैनर आती है फॉर एड्स।
तो इवन फॉर योर व्हाट्सएप, योर इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी एक कुकी बैनर टाइप कुछ आना चाहिए जहाँ पे वो बोलेंगे स्पेसिफिकली कि आप क्या, आई एम गोइंग टू बी एनालाइजिंग योर मेटा डेटा और योर एल्गोरिदम एक्सेट्रा फॉर गिविंग यू personalized ads. Preferential. हाँ, preferential. So that is where you need to either withdraw or पढ़ना पड़ेगा ये सब। ये जो कुकीज वगैरह एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद में डिलीट कर सकते हैं। हाँ, so there are 3 options for cookies. There's accept, reject and manage. So accept, हाँ, so accept में अगर आप accept करते हो तो आपको ads आएगा, reject करते हो तो ads नहीं आएगा, manage करते हो तो manage में ना नहीं मैडम क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये कि एक बार एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद में उसको कैसे विड्रॉ या रिवोक कर सकते हैं? Oh, वापस the same way. You will have to have a withdrawing option as easy as giving consent. तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे easy withdrawal एक ऑप्शन होना चाहिए that I don't want to see ads anymore. तो वहाँ पे आपको क्लिक या फिर whatever they Which is not there these which days. is not there right now. It needs to be implemented. Right? Because unless you accept the cookies, you won't be able to see anything. Correct. So now it will have to come into place in future. Yes. कि कुकीज अपन रिजेक्ट भी करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ मेरे ख्याल से कुकीज अगर रिजेक्ट करते हो तो एड्स भी सर कुकीज अलग होता है और कंसेंट जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो अलग होता है। सर कुकीज का क्या होता है कि वो ना आपकी ट्रैकिंग को या आपका ट्रैकिंग डेटा जो है ना वो मैप करते हैं, इवन एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह ये सब आपका ट्रैक करते हैं। अगर आप रिजेक्ट कर दो तो क्या होगा, आप जो वो पैरामीटर्स पे आपसे ट्रैक करते हैं डेटा वो नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप सर्विस नहीं ले सकते हो उनसे, आप सर्विस ले पाएंगे, उनकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर पाएंगे, लेकिन अगर उनको कोई स्पेसिफिक चीज के लिए आपका डेटा चाहिए वो आप अगर उनको नहीं देंगे तो उनको वो सर्विस देने में आपको दिक्कत होगी। मेजरली ये वैसे और तो जिसमें मेजर इंपैक्ट नहीं होता। इसलिए ना जो कुकीज भी होती है उसमें 2 होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होती है वो उन्हें चाहिए और नॉन एसेंशियल को आप बंद कर दीजिए। और मैनेज में जब भी मैनेज का ऑप्शन आवे तो अपने को एसेंशियल क्लिक Yes, करना yes, बिल्कुल। I always do that. Only necessary cookies. only necessary. आई आल्सो ऐप अगर मना कर दे कि मुझे डेटा डिलीट नहीं करना है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, क्रेड है, मतलब उसकी सर्विस से हम तंग आ गए, उनको वो ऐप डिलीट कर दे, हमने अपनी एंड से डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो उनके पास तो डेटा है, अगर वो डिलीट करने को मना कर दे, मतलब ओरली या राइटिंग में, तो हम क्या कर सकते हैं? So I'll take this. अगर आप ऐप डिलीट कर, you deleted the app, have you withdrawn your consent for the data also being deleted? क्योंकि क्या होता है ना, there are 3 ways to do the erasure. एक है आपने खुद withdraw किया है consent to take your data or to process the data, and second is not being active on the app. So suppose आपका Flipkart पे आपने ऐप डिलीट कर दिया, for a period of time they automatically have to delete your data क्योंकि आप inactive हो on the platform. वो मना करे तो क्या करें? Then you can always breathe, like you can always. तो आप सीधा बोर्ड के पास जा सकते हैं, आप सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि आप जो बोल रहे हो उसका अभी तक तो कुछ नहीं था, आगे प्रावधान है। यू कैन ऑलवेज सू द यू कैन ऑलवेज ड्रैग फ्लिपकार्ट टू द बोर्ड। So it is very interesting session. We can go on for long because टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारा सेमिनार होता है तो हमेशा ही ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है और इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। But unfortunately, like every other good program, this program also has to come to an end. So I'm very happy that team of SRA Legal had taken pains to come to us and enlighten us about a very important upcoming law which is going to touch base almost every individual and organization. There are very few laws which touch base individuals and organizations both. So इसका असर हमारे व्यक्ति पर भी होने वाला है, संस्थाओं पर भी होने वाला है। तो आप लोगों ने हमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारी दी वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से काफी हेल्पफुल रही और हमारे ऑडियंस को भी काफी इससे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री निखिल मद्रासी और पूरी टीम की तरफ से आपके खूब खूब आभारी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस बारे में और कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तब आपकी सेवाएं उपलब्ध होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।